ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟਲੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਦੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਿਰ ਯੋਵਨਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। तो ओम श्री भगवान कृष्ण जी महाराज आपकी सदा ही जय। सुदामा जी की जय, भक्तों की जय। और आपके लिए क्लैपिंग, और जिस हिसाब से इतनी एनर्जी दे नाल तुसीं जिहड़ा है सुनाया, और तुहाडे सुनान दा जो तरीका है, ढंग है, वो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मैनूं अच्छा लगदा है प्रसंग। मतलब करुणामयी सरकार है, एवें नहीं कहंदे तुसीं प्रेम नहीं करदे, अपनी कमजोरी पता की है, प्रेम करदे नहीं। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਰਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਦਾਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਵੀ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਜੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 66ਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਭਜਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਪੈਰ 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੱਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀਆਂ
इच्छावां लैके जांदे मंदिर गुरुद्वारे भी नंदा चौर जाना है भी मैं बच्चे वास्ते मंग के लिया, मैं बच्ची वास्ते मंगना है, मैं आपदे घर वास्ते मंगना, मैं ये कहां मैनू ये थोड़ी प्रॉब्लम मेरी शरीर दी मेरा ये वो जेड़े मंगदे ने नामदान कई है ने सारे नहीं मतलब आपकी जरूरतां नूं कहंदे कई नाम लई आपे आप महाराज जी मेरा पाठ हले नहीं लगदा है ना किन्ना खुश होंदे होणगे महाराज जी साहब बाबू शरदा राम जो माते पिते जाते महीना महीना रह आते तो कुछ मंगते नहीं सी कहते ठीक कहते वाह वाह कहते भी सानू नहीं बस सब कुछ दिता महाराज तेरा आशीर्वाद बड़ा सब कुछ बच्चे दुध पुत सब कुछ दिता तू इस तरह नाल जाओ शुकराना करना वास्ते थैंक यू महाराज होर वे नहीं कि और खुश होके जाना चाहिए बड़ी सुंदर गल है जय जयकार महाराज जी जय जयकार प्रेम करो भी प्रेमा भगती बख्शो वाह वाह चांदी दी भी दर्शन देरी सरला मासी तुहानू प्रणाम दोनों नू भी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार बापू जी जय जयकार। हाँ जी हाँ जी मैं भजन की हाजरी ला रहा आओ साध संगत जी आप लामड़ा दरबार की शोभा का एक भजन की आप रल मिल के हाजरी लाने बिल्कुल बिल्कुल लगाओ जी बनाने वाले सबके कृष्ण कनाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई बापू के रूप में है तेरी ही शक्ति समाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में भेजे तूने बापू ठाकुरदास जी करते हैं सबकी आस जी इनके जन्म दिन पर लगते हैं मेले लगते हैं जैसे कृष्ण गोकुल में खेले भक्ति परोपकार की इन्होंने की है कमाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में भेजे तूने पिता संत राम जी देते हैं भक्तों को भक्ति का जाम जी इन्होंने सबको प्यार दिया है भक्तों का जीवन संवार दिया है सत्संग है और सबकी करते भलाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में भेजे माता शांति स्वरूप जी है ये साक्षात प्रभु के रूप जी प्रभु सारे यज्ञ प्रेम से मनाते सारे भक्तों को गले से लगाते भक्त करते हैं इनकी कृपा की बहुत बड़ाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई दुनिया बनाने वाले सबके कृष्ण कनाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई बापू के रूप में है तेरी ही शक्ति समाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में मुरली बजाई तूने लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में मुरली बजाई लामड़ा में मुरली बजाई ओम जय श्री राम ओम जय श्री कृष्णा ओम जय बापू दी वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ है कि श्री संत राम जी महाराज ਦੇ ਨਾਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ में आए थे था नाम पिता का ठाकुर ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਹੈ कि जोड़ आखिरी अंतरा जोड़ दोनों हाथ दास अर्ज करे
एक बार यहाँ भी आ जाओ। देखो संगत बहुत है, तरस रही, अब और न ज्यादा तरसाओ। वादे को निभाओ उसी तरह जिस तरह के पहले निभाए थे। श्री संत राम जी महाराज दिन आज के दुनिया में आए थे। था नाम पिता का ठाकुर जी और माता भोली जाए। वो ये ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਵੀ वादे को निभाओ उसी तरह जिस तरह के पहले निभाए थे। मैं कि ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਜ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੋ ਨਿਭਾਓ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੈ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਦਲ ਲਾਲ ਜਸੂਜਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਚਾਂਦ ਦੀਦੀ, ਚਾਲੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, मगर सरला मासी पहले ठीक है। जो आशा है वजन बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਐਸੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ भगवान की कृपा और भगवान ਦਾ ਹੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਬਈ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ लगाओ। लाल की जय। भैया बहुत बहुत मुबारक आपको। भाभी को भी सामने ले आना। हाँ आएगी सामने। जय। हाँ जी लगाओ जी लगाओ। पुकारा करेंगे। वाह आ गया, देखो पुकारा आ गया, कन्हैया छोटा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। कहीं से तो आएंगे बांके बिहारी, कहीं से तो आएंगे बांके बिहारी, इन नैनों से उनको निहारा करेंगे, इन नैनों से उनको निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वह बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी,
तो चरणों में पढ़कर मनाया करेंगे, तो चरणों में पढ़कर मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तुम्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, वाह तुम्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वह कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वह कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मीरा की तरह जब पुकारेंगे उनको, मीरा की तरह जब पुकारेंगे उनको, तो झटिया के दर से दिखाया करेंगे, तो झटिया के दर से दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। जैसे भी हैं हमें उनके ही हैं, हम जैसे भी हैं उनके हैं। हम हमको ना तरसाया करेंगे, वह हमको कभी ना तरसाया करेंगे। मगर हमें इतना प्रेम नहीं है, मगर हमें इतना प्रेम नहीं है। कन्हैया को क्यों दोष लगाया करेंगे, कन्हैया को क्यों दोष लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इन नैनों से उनको निहारा करेंगे, तो चरणों में पढ़कर मनाया करेंगे। जब तुम्हें प्रेम की डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वह कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया वाह कन्हैया वाह बहुत सुंदर। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोल बांके बिहारी बिहारी लाल की जय। वाह सरला प्रेम मासी डोरी बड़ा से सुंदर बांध भजन है। लेंगे तो फिर कहाँ भाग जाया करेंगे। वाह वाह बहुत सुंदर। हाँ जी है तो प्रेम दी डोरी नाल ही बंधना पएगा, वैसे तो बंधन च नहीं आते। हाँ जी चांद जी ने पूछो, चांद जी सुनाना, चांद जी ने गावांगे। चांद सुनाओ। भैन जी तुसी अनम्यूट करो चांद दीदी। आज चांद ही बड़े भेज टू अनम्यूट। एक हाँ जी मिनट, एक मिनट काम में थोड़े। अच्छा अच्छा ठीक है, तुसी म्यूट कर लो फिर उन्नी देर फिर दोबारा आ जाना। हाँ जी लगाओ जी। मीन बाय सुदेश मासी मैं जुड़ बोला गए फिर ने, ਹੁਣ हरभजन सिंह जी जुड़ गए ने, शालू जी ने, सारे कोई जो भी तैयार है तुसी सुना दो। नागपाल जी तुसी सुना दो। चलो मैं सुनावा ਹੁਣ। बिल्कुल जी बिल्कुल सुनाओ सर। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। जय जी मैं तो जय। अजकल नत्था सिंह जी सुना रहा। क्या बात ਹਾਂਜੀ है। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जी जय। भगवान एओ अरदास मेरी है, अरदास तेरे चरणा दे पास मेरी है। भगवान एहो अरदास मेरी है, अरदास तेरे चरणा दे पास मेरी है। अगा बुराइयां वालों डकी, पिछले पापा वाल ना तकी। अगा बुराइयां वालों डकी, पिछले पापा वाल ना तकी। हरदम ने नजर मेहर दी रखी, हरदम नजर मेहर दी रखी। मेहरबान बेनती है खास मेरी है, भगवान एओ अरदास मेरी है। अरदास तेरे चरणा दे पास मेरी है। तेरे चरना ते से रखा धोवा, चरण में भर भर अखा। तेरे चरना ते से रखा धोवा, चरण में भर भर अखा। तू ही उठावे ता सिर चक्का, तू ही उठावे ता सिर चक्का। जानी जान मुड़ तो ये आस मेरी है, भगवान एओ अरदास मेरी है।
ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਤੇਰਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਜੀਵਾਂ, ਵਾਂਗ ਪਪੀਹੇ ਪਾਗਲ ਥੀਵਾਂ। ਆਹਾ ਤੇਰਿਆਂ ਵਾਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਹ। ਬਾਜ ਨਾ ਜੀਵਾਂ, ਵਾਂਗ ਪਪੀਹੇ ਪਾਗਲ ਥੀਵਾਂ। ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਾਂ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਾਂ। ਦਇਆਵਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ। ਆ ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ, ਤਤਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਆ ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ, ਤਤਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਤਨ ਦੀ ਤਾਣੀ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਤਨ ਦੀ ਤਾਣੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ। ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਏ। ओम बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा की जय। ਕਮਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ। ਕਥਾ ਦੀ 2-3 ਪੇਜ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਜੇ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। फूल बांके बिहारी लाल की जय। मैया तेरे श्याम ने मक्खन लुटिया दस की तरह। मैया तेरे श्याम ने मक्खन लुटिया दस की तरह, दस की तरह। मैया पुन की तरह। दूध दही बेच के मैं बच्चे पाल दी, दूध दही बेच के मैं बच्चे पाल दी। सुन लग तूत मैया अपने लाल दी, इन्हें मेरा सारा लुटिया दस की तरह उनकी तरह। मैया तेरे श्याम ने मक्खन लुटिया दस की तरह। कर जांदिया ने मेरी लड़दी, मार मार ताने मैनू घरों कढ़ी दी। नाले कहती शाम तेरा की लगदा दस की तरह उनकी तरह। मैया की तरह बंसरी दी तेरी श्यामा मिठी तान वे। बंसरी तेरी ता मेरी जिंद जान वे। बंसरी तेरी दी ता मिठी तान वे। बंसरी ता मेरी जिंद जान वे। बंसरी तेरी ने मेरा दिल दस की तरह उनकी तरह, दस की तरह उनकी तरह। एक बारी शामा मेरे घर आएंगे, एक बारी शामा मेरे घर आएंगे। दुखिया गरीब निधि सुन जाएंगे, तेरे बिना दिल सदा नहीं लगता दस की तरह। मैया की तरह दस की तरह उनकी तरह। मैया तेरे श्याम ने मक्खन लुटिया दस की तरह। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाँ श्यामा तेरे श्याम खत्म। मैया तेरे श्याम ने कान्हा मक्खन लुटिया दस की कर, दस की करा। चलो बहुत सुंदर सुनाया। मैं हूँ सुनाने लग गया लोभ का दुष्परिणाम। हाँ जी सुनाओ। आज की कथा। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। लोभ का दुष्परिणाम। दोहा।
मानुष केरी खोपड़ी कभू धरा पै नाहे, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माहे। मनुष्य ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल। माया सक जीव का क्या मन कभी मायावी पदार्थों और सुखों से भर सका है? कदाप नहीं। यदि तीन लोकों का धन भी इसे क्यों ना प्राप्त हो जाए तो भी ये असंतुष्ट एवं अतृप्त ही रहता है। मन की शांति जैसी दुर्लभ वस्तु को इस नादान मनुष्य ने नश्वर पदार्थों के लोभ में पड़कर हाथों में खो दिया है, जिससे वह अशांत एवं दुखी बना हुआ है। माया का दुखदायक स्वरूप नीचे लिखे दृष्टांत से भी स्पष्ट होता है। एक बार किसी शिष्य के साथ उसके गुरुदेव कहीं देश भ्रमण को जा रहे थे। गुरुदेव बड़े ही त्यागी और तपस्वी थे, परंतु चेला अभी मायासक्त ही था। उसके मन में हर समय माया का लोभ ही छाया रहता था। वह अपनी फकीरी गुजरान से संतुष्ट न होकर धन माल के ही सदैव स्वप्न देखता था। राह चलते चलते एक जगह जंगल में उन्होंने दोपहर को एक वृक्ष के नीचे बसेरा किया। निकट ही कोई गांव था। चेला वहां से जाकर मधुकरी ले आया। तब उन संत जी और चेले दोनों ने भोजन किया तथा झरने का शीतल पानी पीकर लगे विश्राम करने। संध्या समय गुरुजी घूमने चले गए और चेला अकेला ही वृक्ष के नीचे बैठा रहा। बैठा बैठा स्वाभाविक ही वह अपने हाथ की लकड़ी से जमीन कुरेदने लगा। मिट्टी नरम होने के कारण लकड़ी उसमें धंस गई। चेले को ये देख अति आश्चर्य हुआ, जिससे उसने वह जगह और भी खोदनी आरंभ कर दी। हाथ भर गड्ढा खोदने पर उसमें से एक पीतल की गागर निकली, जो कि सोने चांदी के मोहरों से भरी हुई थी। ये देख चेला प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह उसे अभी देख ही रहा था कि सामने से गुरुजी आते दिखाई दिए। चेले ने गागर ढांप दी और बड़ी प्रसन्नता से धन मिलने की वार्ता गुरुदेव से कह सुनाई। ये सुनकर गुरुजी ने चेले को समझाया और कहा कि बेटा, ये धन लेकर तू क्या करेगा? ये तो विपत्ति और दुख की खान है। तूने व्यर्थ में ही इसे पाकर विपत्ति मोल ले ली है। इस फिर भी जो कुछ होना था सो हो चुका। अब ऐसा करके इसे पूर्ववत शीघ्रता से धरती में गाड़ दे और हमें यहाँ से तत्काल ही चल देना चाहिए। परंतु चेला हठ करने लगा कि महाराज, हाथ में आया हुआ धन कैसे छोड़ा जा सकता है? गुरुजी कहने लगे, अरे भोले, ये धन दुखों का घर है। यदि तू नहीं मानता तो इसका कुपरिणाम हम तुझे कल ही प्रत्यक्ष दिखला देंगे। अब तो इसे तू जल्दी से गाड़ दे और हमारे साथ चल। तब दोनों ने मिलकर उस गागर को पूर्ववत दबा दिया और वहां से आगे प्रस्थान कर गए। रात्रि को दूसरे स्थान पर बसेरा करके जब प्रातःकाल वहां से जाने लगे कि एकाएक गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, ओहो, उस वृक्ष के नीचे तो हमारी आधारी विरागन छूट गई है। आधारी किन्हों कहते ने? विरागन, आधारी 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 कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ मेरा ख्याल वो होनी जी इस तरह रख देना, इस तरह थले। हाँ, हो सकता ਜਿਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਧਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। हाँ, टूट गई है। चलो ले आए। तब वे दोनों उसी वृक्ष के पास वापस पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वृक्ष के नीचे 8 व्यक्तियों की मृतक शरीर पड़े हुए हैं तथा साथ ही धन से भरी वही गागर भी पड़ी है, जिसे के ले जाने वाला कोई नहीं। ये सब देखकर चेला आश्चर्यचकित हुआ और गुरुजी से पूछने लगा। उसे 8 डेड बॉडियां पईयां थी और वो गागर भी पई सी उवें।
ये देखकर चेला आश्चर्यचकित हुआ और गुरु जी से पूछने लगा, संत महात्मा भूत भविष्य व वर्तमान काल के ज्ञाता होते हैं, परंतु आम तौर पर वह प्रत्यक्ष में साधारण मनुष्यों की भांति अधिकतर मौन ही रहते हैं, लेकिन जब कभी उनकी मौज हो तो वह दूसरे का हित सोचकर सब कुछ बता भी देते हैं। इसी कारण प्रत्युत्तर में गुरुजी ने कहा कि विरागन का छूट जाना तो केवल आकार ही हमने बनाया था, वास्तव में धन के लोभ का दुष्परिणाम दिखाने के लिए ही हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। बात यूं हुई कि हमारे यहाँ से चले जाने के बाद ये 8 मनुष्य यहाँ इसी वृक्ष के निकट से ही कहीं जा रहे थे। संयोगवश धरती के कुछ नरम होने के कारण एक व्यक्ति का पांव उसमें धंस गया, जिससे इन्हें इस जगह गड्ढा सा प्रतीत हुआ। तब सब के सब खोदने में पर उन्हें ये गागर प्राप्त हुई। अब 8 में संपत्ति का समान भाग से बांटना निश्चित हुआ। जब इन्हें भूख ने सताया तो 4 मनुष्य तो गागर के पास रहे और अन्य 4 गांव में से भोजन लेने के लिए चल दिए। गांव में पहुंचकर चारों व्यक्तियों के मन में ये कुटिल विचार प्रस्फुलित हुआ कि क्यों ना हम ही चारों इस धन के अधिकारी बने। ये सोचकर उन्होंने पहले स्वयं भोजन खाया और बाद में उन चारों के लिए जो भोजन बनवाया तो उसमें जहर मिला दिया गया। अब वे चारों व्यक्ति भोजन लेकर प्रसन्नता पूर्वक वृक्ष की ओर चले कि उन चारों को मारकर संपूर्ण धन को अपने अधिकार में कर लेंगे। अब उधर की बात सुनो। वृक्ष के नीचे बैठे हुए इन चारों व्यक्तियों के मन भी मैले हो गए। उन्होंने ये योजना बनाई कि ये लोग तो खाना खाकर आए हैं, इसलिए ये सब अब चारों सो जाएंगे, तब इनको सोते में ही कत्ल करके हम ये धन प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात निश्चिंत होकर खाना खा लेंगे। जब ये चारों व्यक्ति उधर गांव से भोजन लेकर पहुंचे तो इन्हें कहने लगे कि हम लोग तो खाना खाकर सोए हैं, आप लोग खाना खा लें, तब धन का बंटवारा किया जाएगा, परंतु अभी भूख नहीं है का बहाना कर इन चारों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। जब उनके कहने पर खाना लाने वाले चारों व्यक्ति सो गए तो उन चारों ने तेज कटार से उनके गले काट दिए। इसके बाद जब उन्होंने विष मिश्रित भोजन किया तो ये चारों भी सदैव के लिए सो गए और ये धन की गागर वैसी पड़ी रही। इतनी कथा सुनाकर गुरुदेव जी ने पुनः शिष्य से कहा कि ले अब आंखें खोल कर देख ले, ये धन के लोभ का प्रत्यक्ष दुखदायी परिणाम, जैसा हमने कल कहा था कि वह आज समय तू देख ले। वह सभी इस धन को हड़पने की इच्छा से ही मर गए हैं। अब इस धन को ले जाने वाला कोई भी ना बचा। बोल अब क्या कहता है? यदि चाहे तो इस गागर को उठा कर ले चल। ये सब सुनकर चेले ने कान पकड़े और वह समय को धिक्कारता हुआ गुरुदेव जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब गुरुदेव जी ने उसे वास्तविक प्रेम भक्ति का उपदेश दिया तथा क्षमा प्रदान की। तत्पश्चात गुरु जी के साथ शिष्य आगे यात्रा के लिए चल दिया। तात्पर्य यह है कि धन का लोभ ही समस्त दुखों और विपत्तियों का मूल है। ऐसे ही सब पदार्थों के लोभ का भी परिणाम समझ लेना चाहिए। विचारवानों को चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार जितना भी मिल जाए उसी में ही प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहें तथा संत सत्पुरुषों की पावन संगत में जाकर उनसे नाम उपदेश ले भजन ध्यान का प्रयत्न करें। जैसे कि श्री रामायण में भी ये प्रसंग आया है। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में शबरी से वचन फरमाते हैं कि अष्टम यथा लाभ संतोषा। 8वां जी नाम भक्ति सुनाई ना, प्रेम नौ भक्ति
यही माया के लोभ व लालच से छूटने का सरल उपाय है। नवदा मालिक के भक्ति। दिए हुए नवदा भक्ति हाँ अष्टपदी लाभ संतोषा, जेड़ा कोई मिले ओम संतोष करो। यही माया के लोभ व लालच से छूटने का सरल उपाय है। मालिक के दिए हुए धन व पदार्थ पर संतुष्ट रहना चाहिए। ये 8वीं भक्ति कहलाती है। धन का लोभ कितना भयंकर होता है, ये इस दृष्टांत में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए प्राणी मात्र को इससे छुटकारा पाना चाहिए तथा भगवत भजन में और मालिक के गुणानुवाद में लीन रहकर अपना लोक परलोक उज्ज्वल बनाना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह। लोग कमाल है, आगे तो दा ये हाल है भाई, बड़ा और आपने पहले नहीं पता लगता जरूरी ਜਦੋਂ ਉਹ लाल तेरी बलाए त्रिकाल ये दर्शन है, होते ने संत। तो पुरानी सुनी हुई थी कि मैं ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ अच्छा ਨਹੀਂ ये ਸੁਣੀ जिन्नी ਸੀ। बारी सुनी ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ कन्या कथाएं सुनिया हुई ਵਾਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਐ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ 18ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਰੂਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਪੁੱਛੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मगर लग जाता है ਹੈਂ? की करिए जिन्हें ਹੈਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਤਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। राम का नाम आता है पढ़ ले चंगा गीता को माड़ी थोड़ी ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ आई नहीं देवी आई खड़ी है उनको कुछ सुनना सुन लो। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ये भजन बोलना नहीं है ट्राई करें ना अपन की ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਾ। गीता का पाठ बड़ा अच्छा होता है अच्छी लगा ठीक है। ਹੈ गीता का पाठ तो बड़ा अच्छा होता है हमें रोज हाँ। करो। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 18ਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 18ਵਾਂ ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 18ਵਾਂ ਦਾ ਆਏ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। 18वां अध्याय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घनश्याम जी उपजी मन में धीर, मानो आज्ञा आपकी करो युद्ध मन लाए, मोहनाश मेरा हुआ स्मृति पहुंची आए, धन्य आप हो यदुपते कृपा अपने कीन, किया अनुग्रह दास पर संचय किए क्षीण। हाँ जी
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुर्धर पार्थ, वहीं विजय और लक्ष्मी बेजर करें यथार्थ। 18वां अध्याय प्रारंभते। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं, हे महाबाहो ऋषि कृष्ण भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने हारे जी, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मन का संन्यास और त्याग कहा। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सो सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे असत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए, ये पवित्रता के दाता हैं। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है, दान तपस्या स्नान यह मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं वह यह सत्य कर्म करने तिनको भले हैं। भले हैं, भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण से मेरे मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा ना करें, यह अति भला है। और जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो यह तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है, इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्म को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। अवश्य कर्म करें और फल की कुछ वांछा ना करें, ऐसा सात्विक त्याग कहता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते, और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं। फल की वांछा नहीं करते हैं। अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है, तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करना जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने भक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं, सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे है। अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कामी यह निष्कर्मी नहीं होता, और ना यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है, सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्यों को नित्य ही अपने कर्म करने से 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे का फल दुख, और जो भले बुरे कर्म को रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं। पर किन को? जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले वे बुरे, सो सब देह इंद्रियों मन से होते हैं। आत्मा कैसा है, करता है कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिनकी निर्मल बुद्धि है, सो तिस आत्मा को पहचानते हैं। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूं वो करता हूं, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियों मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है, सो वह लोगों को मारे तो उसको कोई दोष नहीं देख नहीं सकता। किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन।
जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मदृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापक जानकर उसके सबके साथ एक सा हो, वैर से दुख किसी को ना देवे, दुखदाई ना बने, यह सात्विक ज्ञान कहता है। और अब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है, मैं और, यह तेरा, यह मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबके साथ वैर बांधा रहे, सो ऐसा तामसिक ज्ञान कहता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो कोई वांछा कर्म करे सो कर्म करना मुझको योग्य है, जो यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, यह सात्विक कर्म कहता है। जिस कर्म के करने से फल की वांछा है और अहंकार के साथ कहे कि मैं यह कर्म करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जीव को दुखाना, किसी को घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोहया हुआ कर्म का आरंभ तामसी कहावे हैं। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध, इत्यादि जो सत्य कर्म है, तिनको करे, फल कुछ ना वांछे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित, जो कुछ सहज सो ही करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न हो बैठे। वह क्या समझे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, हर शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आप मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहा। अब राशि करता सुन, जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर शोक कर संयुक्त, जो यज्ञ करे, इसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य व्यय होता है इस कारण से शोक होना, यह राशि करता कहलाता है। अब तामसी करता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि यह महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना निभावे, महामूद, आलसी, विशाची, किसी से लड़ाई करे, यह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से ग्रस्त में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे कि जिसको सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, यह राजसी बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहावे है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवे, और इंद्रियां सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे, यह बात हो, तब सात्विक दृढ़ता जान। और मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ता, द्रव्य के काम में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राशि दृढ़ जान। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन, और किसी से कलह, विषाद, या तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता, तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते, इनको तामसी दृढ़ता जान है। भारतवर्षी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन, जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट दुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साथ करे, तब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह तामसी सुख कहावे है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख को, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, यह राजसी कहावे है। अब तामसी सुख सुन, प्रथम बेसुर्त निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहती तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले, पाताल लोक, नागलोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण वर्ते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव लोग में वर्ते हैं। लोगों में गुण हैं, गुणों विखे लोग हैं, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियों का जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान, परमेश्वर का जानना, गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य, व्यापार, गांवों की सेवा करना, यह वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन,
तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो इसमें संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। यह चारों वर्णों के स्वाभाविक हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या है। पार ब्रह्म सृष्टि, सारी सृष्टि का जो कर्ता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, तिसको प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, यह चारों वर्णों के ये धर्म जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालने से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही इनको कल्याण देना है। प्राय धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चार वर्णों के धर्म कहे हैं, अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं, उनको किसी कर्म का त्यागने का दुख नहीं, और जो सत्य पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दें, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। तैसे ही चौथे पद वाले का कर्म भी आरंभ भी करना दोष है। कर्म को करना सत्य पद को बिगाड़ देना है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ, तो इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, इसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण यह है, किसी से मोह ममता संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है। किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है। किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वांछा नहीं, सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ है। तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्म विखे तिसको दृढ़ निश्चय हुआ है, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों को चितवना नहीं, इस प्रकार देह मनसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है, सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोक, तले शेष नाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छहों ही विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है, सो देह साथ होते भी मुक्त है। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए। माया के तीन गुण सो काटे गए, जब तीन गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से इसको ब्रह्मभूत की कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता ना करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा ना करे, सभी भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो। यह लक्षण तुरिया के हैं। जब तुरिया पद में मनुष्य आवे हैं, मेरी भक्ति को तुरंत ही पाए हैं। मेरी से भक्ति यह है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुरिया पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महत्वता का बोध, ब्रह्म बोध विचार, इसको जाने आगे और महात्म नहीं। इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सिमरे। हे अर्जुन, जिस मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे, तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे, तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जालीन होता है। यह चौथे पद तुरिया शांति पद के लक्षण कहे। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है, और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर, बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा, तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा कहना झूठ है। क्यों जैसी तेरी प्रकृति है, तैसा ही तुझसे हो रहा है। कुंती नंदन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी हैं,
देहधारी उपजे हैं सो स्वभाव के वश हैं। स्वभाव किसी के वश नहीं। जो तू कुटुंब का मोया यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करावेगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे है, सो अवश्य का जीवों को मोह के मंत्र पर ही बैठाकर सबको भ्रमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह परम गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण आ, मैं ही तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख है, जिसको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गूढ़ ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी ना पीछे कोई हुआ ना आगे होगा। वह मुझको अति प्यारा है। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया है उसको बहुत फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा तिसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूँ, और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने हारे के निकट में जा खड़ा आता हूँ, और जो अर्थ कर सुनावे तिसकी महिमा बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने हारा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद विनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो तेरे में जो ज्ञान मोह था नाश हुआ। कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला है, च्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई, सो युद्ध करता हूँ। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, राजन, श्री कृष्ण भगवान जी, पार्थ, अर्जुन, इन दोनों की संवाद गोष्ठ का महात्म सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है। सो यह गूढ़ से भी गूढ़ है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है इसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है इसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, आप मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसी प्रकार उसी और लक्ष्मी है जिसकी जय होगी। मेरा मत यही है, तू यह निश्चय कर जान। जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाह जी वाह। ये हमने आज थोड़ा जल्दी पढ़ दिया है, और इसका महात्म ना पढ़ते हुए लेकिन मेरे मन की ये इच्छा आई है एक कि हम इसकी आरती जो पढ़ देते हैं। जय लक्ष्य जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता ओम जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे मैया, छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे ओम जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे तेरी मत ग्रहण करे मैया, तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंध तरे ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ मैया, जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया मैया, तुमने अवतार लिया।
तत्ववाद समझाकर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय श्री गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो मैया, मन से त्याग करो भैया, मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीत करो मैया, सबसे प्रीत करो। वैर भाव ममता वश हो करना अनुराग करो। ओम जय गीता माता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता श्री जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। ओम जय गीता माता। ओम जय गीता माता। ओम जय गीता माता। और बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। जय जय। हाँ जी। बहुत ਇਹ बहुत ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ धन्यवाद ਜੀ ਦੇ भैया। 18वें ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ 18वें ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਸ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਇਹ 18ਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बहुत ठीक है। बहुत बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद। सुंदर गीता नहीं, पाठ अच्छा करने। हाँ संगीता जुड़ी हुई है। मैं संगीता हाँ जी। आपका ख्याल कर रहा था, मैं एक उनका ख्याल कर रहा था स्वामी ज्ञानानंद जी का, वो भी गीता ज्ञान बहुत बताते हैं, और एक मैं आपका हाँ ख्याल जी, कर रहा हाँ था। इसमें आ जय था बापू जी। जो गीता का पाठ सुनाए और उसका भी मैं पास खड़ा हो जाता हूँ, और खास करके जो इसके अर्थ करके सुनाए जो कि हमें संगीता सुनाती है, तो उसका तो कहना ही क्या, मतलब उसको कितना पुण्य मिलता है। ये बात मैं सुन के मुझे आपका ही याद आ रहा था, तो आप जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। बापू जी की कृपा है, बड़ी मेहर है जो ऐसे सत्संगी लोगों से मिलाया कि मेरा और प्रभु के प्रति और प्रेम बढ़ गया, प्रभु के प्रति बढ़ गया, सदगुरु के प्रति बढ़ गया। तो ये उनकी कृपा ही होती है जो जहाँ जोड़ते हैं। बहुत कृपा जी। जय जयकार। हाँ जी लगाओ जी। हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ हरभजन सिंह जी ਹੈਗਾ? सुन रहे हैं कि हरभजन सिंह जी सुन लो पहले। सुनाओ जी सुनाओ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ। अच्छा बापू नंदा हरभजन सिंह जी लाओ आज भी आपकी, आपकी सदाई जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, भजन कथा दा दौर चल रहा है, बहुत चंगा लगता है कि कुछ समय साडा भी देखे लग जाता है। सुनना सुनाना इंसान की फितरत हैगी है। तो साध संगत जी, जिस तरह आप जानते हो कि स्वामी संत सरदार राम जी का प्रकाश पर्व प्रभात फेरियां दरबार च निकल रही ने, ते कल टका दरबार च भी राती मनाया जाएगा। ते उन्हां दी शान च जो बापू ने लिखवाया मैं अर्ज कर रहा। सिफत की करा मैं लोको स्वामी श्रद्धा राम दी, जय हो। सिफत की करा मैं लोको स्वामी श्रद्धा राम दी, नूर सी चेहरे दे उत्ते शहनशाह जहान दी, नूर सी चेहरे दे उत्ते शहनशाह जहान। माता शहनशाह? ईश्वर को है जी, शहनशाह? शहनशाह जहान दा, शहनशाह जहान दी। ठीक है ठीक है ठीक। सिफत की करा मैं लोको स्वामी श्रद्धा राम दी, नूर सी चेहरे दे उते शहनशाह जहान दी। माता ईश्वर कौर देवी पिता गोबिंदास सी, जलंधर जिला पिंड अट्टी होया प्रकाश सी, जय हो। बचपन तो ही सी लगी
ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਹਰ ਜੈ ਹੋ। ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਬਲੀ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ। ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਜੈ ਹੋ। ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਨੰਦਾ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਨੰਦਾ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਜੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੈ ਨੂਰ ਸੀ ਹੋ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ। ਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੇ। ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ, ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ सम्मान ਸੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਟੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਟਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਟਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ
ਜੋ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਓਏ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ 1974 ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਆਇਆ 4 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਵੇਲਾ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ 1974 ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ 4 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਵੇਲਾ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਮ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਗਵਾਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਗਵਾਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਨ ਸੇਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਾਜੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਲੈਣਾ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਚਮਕਣਗੇ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਗੇ स्वामी शरधा राम दे चमकणगे तारे जिन्ना चिरी आसमान दे लोकी गुण गावणगे स्वामी शरधा राम दे आओ सेवक करिए पूरे आओ सेवक करिए पूरे उन्हां दे अरमान जी ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕੋ स्वामी शरधा राम ਦੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੀ ਨੂਰ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ शहनशाह जहान बोलो स्वामी सदाराम जी महाराज आपकी सदाई जय शुक्रिया साथ संगत जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आनंद आ गया जी बहुत सुंदर नानकी की हाल है जय बापू दी चांदपुर जय बापू दी सारी संगत जय बापू जी जय बापू दी कबीर जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी कबीर जी सतकर्ता संगत जी जय बापू जी नान के दूसरी दिन रख दी फोन नु बेटा तो पूरे दर्शन हो जाएंगे फिर खुले हैं जे ओनु स्माइल करता है ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक नानकी तू लगानी कबीर ने लगानी हाजिरी बाकी वैसे बेबी जी भी बैठे ने लगाओ लगाओ
बेबी जी बैठे ने लगा बड़ी लो, देर ਇਹਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਕੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। लगाओ जी। देवी जी लगा रहे हैं। हाँ हाँ, लगाओ आप। ਨਾਨਕੀ लग- ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। जय बापू। इस तो बाद फिर आप परोपकार ਦਾ ਬਣਾ जय ਰਹੇ ਹਾਂ। बापू। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा हाय जय। बांके बिहारी लाल की जय। चले आओ तुम्हारी याद आती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है जो हर पल पल सताती है। वाह वाह तुम्हारी याद आती है जो हर पल पल सताती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। गई हो छोड़ के जब से ना दिल को चैन आता है। गई हो छोड़ के जब से ना दिल को चैन आता है। ना दिल को चैन आता है। न दिल को चैन आता है। तुम्हें अब याद कर के ये अखियाँ भर ही आती है। तुम्हें अब याद कर के ये अखियाँ भर ही आती है। तुम्हारी याद आती है जो हर पल पल सताती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। ना कुछ भी जोर चलता है नहीं कुछ भी कहा जाता। नहीं कुछ भी कहा जाता। नहीं कुछ भी कहा जाता। बसे हो प्रीत से दिल में तुम्हारी खुशबू आती है। तुम्हारी खुशबू आती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। गए हो जिस तरह से छोड़ कर क्या ऐसे जाते हैं। क्या कोई ऐसे जाता है। क्या कोई ऐसे जाता है। जहाँ भी हो जरा देखो तुम्हें धड़कन बुलाती है। तुम्हें धड़कन बुलाती है। तुम्हारी याद आती है
जो हर पल पल सताती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बोल बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बेबी जी, बड़ा ही प्यारा भजन। थैंक यू। बहुत सुंदर। सारे ही बड़े अच्छे, हाँ सारे बड़े चुन चुन के शब्द इनके भजन बहुत भाई अच्छे बहुत भजन। नवे सुंदर नवे होते हैं। भजन ले आਉਂਦੇ ਨੇ रोज। बांके बिहारी लाल की जय। की जय। वाह हाँ जी जी। वाह। आ जाओ भाई परोपकार। परोपकार आया नहीं अजय। हाँ जी आ गया परोपकार आ जा आशीर्वाद ले ले अच्छा। संगत ਤੋਂ ਮੋਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो बात हो गई लड़की आशीर्वाद ले लो सारा कबीर जी मामा जी जय नु बापू हैप्पी जी बर्थडे थैंक चलो यू। जय बापू जी, हैप्पी बर्थडे। कबीर साहब वीर कर रहे हैं हैप्पी कबीर बर्थडे। साहब तेरे फुले दर्शन नहीं हो रहे जे हो सकता जन्मदिन है दिया कैमरे बहुत खड़े बहुत हो मुबारक। परोपकार खुश थैंक रहो, यू थैंक यू। लंबी उम्र और खुश रखे। देख रहे दी ले ओ देर परोपकार मर्यादा भाई, योगी का चलो हटा दे पानी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। परोपकार जी हैप्पी खुश रहो जी, बर्थडे। खुश रहो। वाओ। बुद्ध जी, बार मामा जी तेरा फिर भी आज गाओ ना, बार बुद्ध बार जी, दिन हैप्पी ये बर्थडे। आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो ना ना हजारों इस तरह साल, ये हम सबकी है आरज़ू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे परोपकार, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। टू यू। हैप्पी बर्थडे। हाँ मोर वाह हाँ जी बुद्ध जी, हाँ जी हाँ जी बुद्ध जी एक ਵਧਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਲਵਾਂ। ठीक है पहले तो केक कटवाइए कि पहले भजन गाइए जिवें तुसीं कहो मैं भी थोड़ा पहले जिहा बोलना। पहले केक काट लो, पहले अच्छा। केक काट लो। ठीक है चलो आज भी आ जाओ। ओ बापू शांताराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बड़ियां बधाइयां। आप दादी माँ भी देख लो, दादी माँ के दर्शन हो रहे हैं, चांद बुआ के दर्शन, सारे के दर्शन हो रहे हैं। बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत बधाई। वाह जी वाह। Hey, sorry, they put it there. We could see. Don't worry. खुशियां दिया घर Put it so we put it down so we can all come. तू तो आ जाओ नानकी तो। हाँ जी हाँ जी, कबीर भी अच्छे है, मैं भी अच्छे है, तो चलो साढ़े भी कबीर मामू का चलो भाई। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कबीर के मामा जी को। हाँ हैप्पी बर्थडे Happy कबीर पहले पहले मामा मार जी। महाराज तो आशीर्वाद ले लिए। जय हो कबीर महाराज के साहब, मामा जी प्रणाम को हैप्पी प्रणाम बर्थडे, प्रणाम। बहुत बहुत जय बापू जी जय बापू जय बापू जी। लाओ जी करो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार बार ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये हम मिट्टी सबकी की है आरज़ू। हैप्पी Happy बर्थडे birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, dear Kanha. Kabir Mama हैप्पी ji. बर्थडे टू Happy Happy birthday, birthday dear. to
पर का हैप्पी बर्थडे। वाह जय बहुत सुंदर, जय हो जय हो जय, बड़ी कृपा कृपा कृपा। कबीर भी हंस रहा है, कबीर भी हंस रहा है। सारी संगत है हाथ लवाओ, मैं महाराज ਨੂੰ ਪੁਆਣੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁਆਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। wow happy Happy birthday birthday. Thank you. happy birthday Kabir Mama ji Thank Happy you. birthday. Hi Happy Kabir. birthday. hi Mama ji Kabir happy भी बुलाना। birthday कबीर भी हंस रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਈ बोल रहे हैं ना, कबीर निकाल रहा है, कबीर भी जीभ निकाल रहा है। कबीर को खवाओ जी ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਲੈ ਵੀ हैप्पी बर्थडे टू यू। ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ हाईलाइट इसका फेस का सारा टेस्ट तो कबीर ले लिया भैया, देखो ਲੈ ਵੀ ਲੈ पूरा ਸਾਰਾ। टेस्ट ले रहा है। बहुत tasty है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ दो ਸ਼ਾਬਾਸ਼। लाइन बोलो ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੇਟੇ ਕਾन्हा ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੈਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਓ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾन्हा ਸੱਦੇ ਸੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੇਟੇ ਕਾन्हा ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਓ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇਰੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਈਓ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਗਿੰਗ ਬॉय ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰ ਗਲੇ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਦ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੱਦ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾन्हा, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਠਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਜਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵੇਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਵਧੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਪਿਆਰ ਪਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈ
मेरे सोने बापू जी ते तेरा भव सागर तो होवेगा बेड़ा पार है जी। विश्वास है तेरा बेड़ा पार है बापू हर भगवान जी का सेवक बापू शरदा राम जी का पोता अगलो पड़पोता है दोता जो भी है ते जय जयकार है बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा जय बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। ये बड़ा हाँ जी प्यारा बोध बच्चा जी है। मैं बधाई दे रहा। हाँ हाँ सारे दे दो भी दे दो नचना बधाइयां। बापू नचना ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ आओ ਨਾਲ जी, ਮੇਰੇ आओ। ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨੱਚਣਾ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਵਸਣਾ ਬਾਪੂ ਵਸਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਨੱਚਣਾ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। थैंक यू थैंक यू। ए मेरे भी चाचा जी ने जन्मदिन लाए दादा जी हो गए थे। ਸਦਾਈ ਜੈ ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ वाह ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ वाह वाह ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਪੱਤੀ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾਵੇ मेरे करी बापू जी फुलवाड़ी बत्ती दी जावे हरदम वादा पानी दाता थोड़ कदे ना आवे इस रहमत नू ओयो समझे जिसने रहमत पाई अज लख लख होण वधाइयां खुशियां दियां घड़ियां आईयां अज बापू ने खुशी विखाई झूम संगत दे वेड़े वज रही खुशियां शहनाई नचो 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 रुत नचने आई है नचो 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 रुत नचने दी आई है पापा दे जन्मदिन दी सब नू क्यों नचना ते फिर वाह जी वाह बहुत सुंदर जय हो जय मतिया सीता जी नू नाल लिया सीता जी नू नाल लिया हाँ जी आवाज आवाज बंद हो गई नमस्कार बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। हाँ अच्छा आज देखो दोनों 30 दे रहे ये बड़ा भी 30 दा है ये भी 30 दा 1.5 महीना दोनों 30 दे रहेंगे जून 7 तक यही 30 हाँ भैया जय जयकार एक गलती कर देती है भैया भैया you look like 24 I know they feel like and they go to gym every day they feel like 24 हाँ जी हाँ जी हाँ जी आशीर्वाद पहला बेटा हो कुछ दे हाँ जी बहुत भैया हरजीत नू कुड़िया नू उम्र सारिਆਂ में ਨੂੰ और सारे बहुत चांद ਵਧਾਈਆਂ। बुआ बहुत चांद ਵਧਾਈਆਂ। बुआ सत श्री अकाल चांद बोला हरजीत तेन बधाई दे रही है चांद हाँ जी हाँ जी हाँ जी होर कोई हरजीत और- कितने बधाई जन्मदिन की हरजीत तुमको इधर हमारी हरजीत बधाई जन्मदिन की तेनू तुमको तेरी बधाई हमारी 100 वर्ष की हो आयु पर कार तुम्हारी 100 वर्ष की हो हो आयु तुम्हारी बधाई जन्मदिन की तुमको तुझको हमारी बधाई हमारी नित्य भजन संध्या धर्म हो तुम्हारा नित्य भजन संध्या धर्म हो तुम्हारा सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा वाह वाह हरि भजन में लगन लगी रहे तुम्हारी
100 वर्ष आशीर्वाद। की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। शांति व धीरज साथ हो तुम्हारे, प्रेम और सेवा मन में तुम्हारे, रहो निरोगी ये दुआ है हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, मेरी प्यारी दुल्हन यही दुआ हमारी। 100 वर्ष की हो वाह आयु तुम्हारी, वाह बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। इसको भी बोल दो, मिले प्यारी दुल्हन, देश प्यार को भी। बिल्कुल बिल्कुल, बापू जी ऑलवेज ब्लेस यू बोथ। सो नाइस। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत हरजीत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयां उन भाई। हरजीत तेन बधाई, चांदी दी देनी। ये मैं भी चांदी सारी संगत है। चलो कबीर भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे मामा जी, लव यू। थैंक यू। हाय वाह कबीर, कबीर, जय बापू दी। जय बापू दी जय सारियां। बापू जी दी बहुत बहुत बधाइयां सभी को। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत केक नहीं बहुत बहुत मिलेगा कबीर, अभी केक नहीं बबलू जी मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सारा ने रूपा भी आशीर्वाद ਮੰਮੀ ਨੂੰ देता। ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। हाँ जी हाँ जी, थोनू भी सारे जय बापू Congratulations दी। जी, all family ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ members. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ Many many ਮੁਬਾਰਕਾਂ। congratulations. बापू जी मुबारका मुबारका धन्यवाद। मुबारका, जन्मदिन की आपको मुबारका। वाह वाह। मुबारका मुबारका मुबारका, अब जन्मदिन और तो की सुरेश मासी। आपको मुबारका। जय। खुशियों का दिन आज आया, बापू जी ने खुशियाँ दिखाइया, वाह वाह। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, जन्मदिन की आपको बधाइयाँ। जय हो। और बापू राम जी आज महाराज आपकी सदा खुशियां भरे हाथ रखन, वडिया उमरा दे मन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक कला च रहो, हमेशा चढ़दियां वाह, कला वाह। च रहो। मालक Thank बापू नाल प्यार बनाई रखे ਤੁਹਾਡਾ, हर हाँ, ये वक्त बहुत आप बड़ा, रखन बापू। ये बड़ा बड़ा आशीर्वाद बापू नाल प्यार बनया रहे भी है। जय जयकार कर। जय हो जय हो। मासी जी। जय हो। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ओम नाम दा गिद्धा पांदा रहे, ओम नाम दा सारी गिद्धा। जून संगत की तरफ से जसूजा फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। बधाई। सब गाओ मेरे साथ, सब गाओ मेरे साथ। वाह वाह। नित नविया नित नविया दरबार खुशियाँ नित नित नविया नविया नित नविया ਨਿਤ नित ਨਵੀਆਂ नविया दरबार खुशियाँ नित नविया। ओम नारायण जग विच आए, ओम नारायण जग जग में विच आए, आसन नंदा चोर लगाए। आसन नंदा चोर लगाए। लगाए, तार दिए नर नार खुशियाँ नित नविया। तार दिए नर नार खुशियाँ नित नविया। जय हो। नित नविया दरबार खुशियाँ नित नविया। ओम नारायण जग देवाली, ओम नारायण जग दे। कोई सवाली। हाँ जी। ओम नारायण जग देवाली, खाली खाली न न मुड़िया कोई सवाली, है सच्चा है दरबार खुशियाँ नित नविया नित नविया परिवार खुशियाँ नित नविया। एक मन होए सुनो गुरबाणी, एक मन होए सुनो गुरबाणी, सब सब पापां दी होवे हानि, कहे चरदा राम पुकार, खुशियाँ नित नविया।
पर शरदा राम पुकार, पुकार खुशियाँ खुशी नित नित नवियाँ, नवियाँ, नित नित नवियाँ, नित नित नवियाँ परिवार, परिवार, खुशी नित नित नवियाँ, खुशियाँ नित नवियाँ। तड़के उठ जरूरी आओ, आलस निंद्रा दूर भगाओ, सुनो कीर्तन से आशा दीवार, खुशियाँ नित नवियाँ, नित नवियाँ, नित नवियाँ महाराज, खुशियाँ नित नवियाँ, नित नवियाँ, नित नवियाँ परिवार, खुशियाँ नित नवियाँ, नित नवियाँ, नित नवियाँ दरबार, खुशियाँ नित नवियाँ। पूरी जोन संगत की तरफ से जसूजा फैमिली की बहुत, जसूजा फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। जय बापू। वाह जी वाह, खुशियों का धन्यवाद। यह दीप हमेशा बुद्ध जलता प्रकाश रहे, जी, खुशियों का यह दीप हमेशा जलता रहे, जिंदगी का वाह। कोई तूफान से ना मिटा पाए, हंसी जय हो। तुम्हारी कोई मिटा ना पाए, कोई तुझे रुला ना पाए। वाह ये प्रार्थना बापू जी हमारी स्वीकार हो जाए, पर उपकार पर आपकी कृपा हो जाए, पर उपकार पर आपकी कृपा हो जाए, जो इसकी इच्छा हो वो मंजूर हो जाए, जो वाह, इसकी इच्छा हो बापू जी वो वो मंजूर हो मंजूर हो जाए। जाए बापू जी। ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਸੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ बुद्ध ਨੇ। प्रकाश जी चंद, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, बुद्ध प्रकाश जी चंद लेना मैं अर्ज कर रहे हैं जू संगत की तरफों, सारी तरफों ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਰਸ਼ਾਦ। अर्ज कर रहे हैं। मां प्यो दा पूरा किता सपना, ਹਾਂ मां प्यो दा पूरा किता सपना, दुनिया विच आके साकार है तू। ਹਾਂ मां वाह। प्यो दा पूरा किता सपना, ਲੈ दुनिया ਵੀ, विच आके साकार है तू। ਹਾਂ तू फुल सोना है इस जहान अंदर, लेके आया बहार है तू। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, तू फुल ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। सोना इस जहान अंदर ते लेके आया ਬਹਾਰ बहार ਹੈ है ਤੂੰ। तू। वाह। सच आखा खाली पुत नहीं है तू, ਹਾਂ सच आखा खाली पुत नहीं, मां ਹਾਂ, प्यो दा सारा संसार है तू। ਵਾਹ ਵਾਹ, सच आखा खाली पुत नहीं, मां प्यो दा सारा संसार है तू। ਹਾਂ परोपकार करदे रहना, मां प्यो दा सदा करदा सत्कार है तू। वाह। सेवक जन्मदिन दी दिंदा लख ਵਧਾਈਆਂ, ते यारां दा भी तू यार है तू, यारां दा भी तू यार है तू। देखा, ये हरभजन ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜ ਕਰਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ। थैंक यू थैंक यू। बस सदबुद्धि बख्शे, हले तक बहुत प्यार करते हैं भी सारे, बड़ा ख्याल है। थैंक यू थैंक यू। प्रकाश जी को बधाई हो। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा हाँ, सुजा जी ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सुजा जी ठीक है, थैंक यू सब का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, दो जी विश्राम। ऐसे हैं दीन दयाल, मार दो या और जिन्हें नहीं लगाए फिर लगाओ, जिवें तुहाडी इच्छा है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਮ ਬੱਪੂ ਨੰਦਾਚਾਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਲਾਹੀ ਜੈ। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ।
कर दे संतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। नाम इनाम दा श्रद्धा राम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा। नाम नादा राम प्यारा, सरदा राम प्यारा। साडे लई ताई को यही सहारा, यही सहारा। साडे लई कोई सहारा, सहारा। यह है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है करुणामयी सरकार जी मेरे जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा चौल वाले हाँ जी, सरला मासी करो कृपा। जय हो, बहुत सरला मासी। सुंदर, थैंक यू। जावे पक्का है निश्चय खाली न जावे। हाँ। मार दे मालो मार ये मेरे सतगुरु। दीन दयाल ये मेरे सतगुरु। श्री रामायण जी ने खंड पाठ करांदे। वाह वाह। अमृत गीता सुखमणि पढ़ाते। आज उथे हो रही है जय 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 जयकार जी मेरे सतगुरु। जय जयकार जी मेरे सतगुरु। ऐसे दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। मां पींदे ते डेरे दे विचों लूण तक न खांदे। डेरे दे विचों लूण तक न खांदे। अपने हथी मां बनांदे ते उसे दे विच गुजरा जी मेरे सतगुरु। वाह। चलो अखां दे नाल जी मेरे सतगुरु। दयाल जी मेरे सतगुरु। दर्द तेरे जिया अखियां प्यासी तेरियां उड़ीक करा दिन राती। आके दे वो दीदार जी मेरे सतगुरु। ओ मैनू दीदार जी मेरे सतगुरु। ऐसे दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। चरना दे विच शीस झुकावा। चरना दे विच शीस झुकावा। तुहाडे कोल बैठ के बुलावा खुशावा। चरना ते बैठ के मैं बुलावा खुशावा। हुण बख्श दियो कृपाल जी मेरे सतगुरु। मैनू बख्श दियो कृपाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। साडे नाल प्यार जी मेरे सतगुरु। वाह। सतगुरु जी मेरे सतगुरु। ओ बापू राम जी वाला जाती सदा। ठाकर जी को वंदना कर जोर करो। ज्वाला बात को चलने की करो। ओम नारायण जी वंदना करो कबूल। ठाकर जी का सारा बरना को कर पिता महाराज को मिलको तो करना। जाके समय मुझे पाए पर निर्माण। नारायण नाम जी को जो जाते हैं तो कोट प्रणाम कर जाते हैं। सतगुरु राम की सिमरत हो जाते समन के
मन को आवे चैन। ये मेरे सतगुरु जी देना बंधु जाओ सब सर्व का प्रेम सुखम जाग जो ताव राजो सब सदा भरपूर सदाचारी ब्रह्मचारी दयाधारी परोपकारी नाम बेदाय सत्य संग सत्य करे मेर सुखी जिन सब करता है रात सब जिनसान करना न देखता है स्वाव स्वाव सारका चंदन प्रणाम तेरे सदन राम मन या तेरा नाम से ये मेरे सत्य संग क्या दिखा दिए दशों के नाम के बेटे संस्कार जन्म देने बच्चे ने बढ़िया उम्र बच्चियां हर तरह की सुमति और सुमति में आप का सेवादार बने चार साल झूम सकते मिलके आप बजे जो खेलवाड़ कर पड़े जो तो बोलते माफ करना अगे वास्ते वाणी शो दीपा तो पड़े मिश्र वाणी पर दीपा तो बोल बल बुद्धि वचना नाम का वचना करना का जो सारी संगत भी हाजरी मंजूर करने के साथ तो सेवा चाहिए पढ़ने सुनने में गलतियां हो जाती हैं उनसे करना अगे वास्ते वाणी शो पर दीपा तो बल बुद्धि वचना नाम का करना का सारी संगत भी हाजरी मंजूर करने जो भी कोई इच्छा लगता है सब इच्छा पूर्ण करने हर तरह सुख हर एक आपके सेवक मुक्ति में भक्ति बख्शी काम क्रोध लोभ मोह का सच्चे रस्ते का अनुसार ईश्वर गुना सर्वनाश परिमाण का अध्यवास के करना नाम किया ईश्वर गुना माफ परिमाण का अध्यवास के करना काम क्रोध लोभ मोह काट बचाना सच्चे रस्ते खाना आंग संग सारी करना तेरे से सहता करनी अंत तेरे सारी होना मैंने मान तेरे कृपा का मेरा मान में मानी न करूँगा मैं आज भी जब तेरे मन खाली सतगुरु मोड़ी दूंगा जब सुंदर भावा नौ फल के पाव लगानी चले नौ फल के पाव लगानी चले तेरे ओम जी नाम बापू जी नाम ओम जी नाम सत्य जी नाम गुरु नानक नाम जग जी दया तेरे राम सत्य बना तेरे राम तेरे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले आपकी सदा ही जय जय भाई। थैंक यू मासी, थैंक यू परोपकार बारे अरदास करती बहुत बहुत धन्यवाद है। जय बापू जी सारा स्पेशल थैंक यू मासी जी, इतनी देर तक आप बैठे रहे। थैंक यू सब का धन्यवाद। जय तो ठीक है जी, जय बापू जी सारिਆਂ ਨੂੰ। जय बापू जी जय बापू सारी संगत ਨੂੰ सत करतार और बापू जी जय जयकार और सारी संगत ਨੂੰ कांग्रेचुलेशन वंस अगेन भैया। अक्षय थैंक यू। आज बड़ा बड़ा दिन है अक्षय तृतीया दा। अक्षय तृतीया दा इन्ना बड़ा दिन है आज। आज चरना समेत जेडे मैं दर्शन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ भेजे सीगे कृष्ण भगवान दे बांके बिहारी दे लाइव दर्शन हो रहे सी ते मैं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भेजिया सी फोटो ते ओके जी। जय बापू दी बहुत बधाई जय सत्कार जय बापू जय बापू। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय।